Namaste to everybody who's joining us today. मेरा नाम वानी मनोराज है, and on behalf of Chetna, I'll be moderating today's session. आज के session में we will be discussing about the various challenges faced by child in need of care and protection and child in conflict with law. हम उनके protection system को समझेंगे and हम अपनी तरफ से उनके लिए क्या कर सकते हैं ये भी समझेंगे from our esteemed panelists today. Before we begin, I would like to introduce Chetna as an organization. Chetna Conscience of Women was founded by Mrs. Pragya Parande in 2012. She is currently the member of National Commission for Protection of Child Rights. Chetna 5 verticals के अंदर काम करता है, namely health, education, safety, awareness and empowerment. चेतना का मिशन है to empower and enable women to become positive change agents in society. इन जो हमारे 5 वर्टिकल्स हैं उसके अंदर हम काफी प्रोग्राम्स करते हैं which help in achieving the United Nations Sustainable Development Goals. अगर आपको चेतना के काम के बारे में और जानना है आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे. अगर आपको चेतना को सपोर्ट करना है तो आप हमें आप डोनेशंस दे सकते हैं and the information for that is now available on the screen. I would also be putting that in the comment section so that would be available. आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे esteemed panelists. सबसे पहले हमारे साथ हैं Miss Rosie Taba ma'am. She's our chief guest for today's session. Ma'am is a member of National Commission for Protection of Child Rights, where her work is focused on child labor and other related issues. She was an advocate by profession and a former member of Arunachal State Commission for Women. Thank you, ma'am, for joining with us. We also have with us Ms. Neha Mishra. Ma'am is the Assistant Professor of Law at Jindal Global Law School. She was also a visiting fellow at Michigan State University and invited panelist at Washington University in US. Ma'am's doctoral study has revolved around child rights law. She has published various international research papers in top journals in the area of gender studies, child rights, and human rights law. We have with us Mr. Anant Kumar Asthana. Sir is a lawyer and an expert on child-related laws, and unka special area of interest has been juvenile justice. Firstly, thank you for coming to all our panelists, and I welcome you for today's session. We'll start with Rosie, ma'am. Ma'am, you have been a member of the State Commission, and you're currently the member of the National Commission. मैम अगर आप हमें बता पाएं कि नेशनल कमीशन का रोल चाइल्ड प्रोटेक्शन के एरिया में किस तरह का उनका रोल है एंड वो क्या-क्या काम करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के. वैसे तो कैन यू हियर मी वानी? जी मैम. हाँ, जो एनसीपीसीआर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और जो एससीपीसीआर है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, they have been set up according to the act of CPCR Act 2005. उसमें हम लोग का पूरा रोल एंड फंक्शन डिफाइन किया गया है. इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री एज अ नेशनल कमीशन एंड स्टेट में एज ए स्टेट कमीशन कि वो बच्चों के लिए जितना भी काम कर सके बच्चों के हित में वो करे. यू नो I think many people don't know, but we have various division under the commission. जैसे I look after child labor as a whole in India. There are other division like JJ, Juvenile Justice Division. There is a child division. There is a child health division. There is a law relating to children. There is psychology division. So these are the various sections how NCPCR has divided itself so that each of the area where children need is been given importance. वैसे स्टेट में भी होता है, बहुत सारे स्टेट एग्जैक्टली लाइक नेशनल कमीशन जैसा फॉलो करते हैं और बहुत सारे वो खुद भी बनाते हैं. लाइक इन दिल्ली आई हैव सीन उन्होंने डिसेबिलिटी वाला भी एक बनाया है एज एन डिवीजन. So as an NCPCR we are mostly on the monitoring side as a monitoring body. क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड ये जो पॉलिसी बनाए हैं जो लॉ बनाए हैं क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर हम चेक एंड बैलेंस रखते हैं. ज्यादातर ये हम लोग करते हैं कंप्लेन रिड्रेसल मैकेनिज्म से. जैसे हम लोग को कंप्लेन आता है कि किसी स्टेट में इस बच्चे के प्रति ये लीगल लॉज लगने चाहिए थे और नहीं लगे,
और इस पे आपका इंटरवेंशन चाहिए, तो हम इंटरवेन करते हैं, लिखते हैं उस स्टेट को या लिखते हैं उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को, पुलिस हो, रेलवे हो या डीसी हो, उनको लिखते हैं कि आप इस पे इंटरवेन कीजिए और हमको रिपोर्ट दीजिए। अगर आप रिपोर्ट नहीं देते हैं उस समय में तो एज इन सिविल कोर्ट हम उनको समन भी करते हैं। और दूसरी हम लोग पॉलिसी इंटरवेंशन भी करते हैं wherever it is necessary. There are intervention program activity करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं जहां जरूरत होती है। And there are recommendation that we give it to the state government, central government for betterment of child policy to be made in the country and the state respectively. जी मैम, ये आपने बहुत थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग अस दिस बिकॉज आई नो एज अ नेशनल बॉडी NCPCR इज वेरी क्रूशल इन चाइल्ड प्रोटेक्शन। हमारे जो बच्चों की आवाजें हैं वो सही लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही अहम काम करती है NCPCR। एंड इफ व्यूअर्स अगर आप नहीं जानते हैं तो आप NCPCR की वेबसाइट को चेक करें। अगर आपको चाइल्ड राइट वायलेशन कहीं लग रहा है तो आप NCPCR को डायरेक्टली ग्रीवेंस डाल सकते हैं एंड दे विल लुक इनटू द मैटर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्राउंड लेवल। आज के हमारे जो वेबिनार है उसका टाइटल है मेकिंग देयर एक्वेंटेंस एंड दिस इज सो लास्ट वेबिनार जो हमने किया, हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को देखा। उसमें जो 2 कैटेगरी है उसमें जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है एक कैटेगरी एंड एक कैटेगरी है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो वी विल नाउ अंडरस्टैंड हु दीज चिल्ड्रन आर and उनका protection system कैसा है, what laws benefit them and what are the challenges. Anand sir, I will ask you this. If you could introduce us to child in need of care and protection and what are the acts or what are the laws in India which benefit the children. Anand sir? Ji sir. Yes. Child in need of care and protection is a huge category of children. For example, if a child who is victim of a natural calamity and has nobody to look after, tsunami आ गई और बच्चे अनाथ हो गए, that child is child in need of care and protection. Suppose if there is a child whose parents are not capable of looking after his well-being, then after inquiry, when the parents are found unfit, and the standard of finding a parent unfit is very high. Poverty, for example, is not a criteria of a parent being unfit. ये तो सारे बच्चे फिर child in need of care and protection हो जाएंगे, right? So if the parents are unfit, for example, a mother is paralyzed and father is a drunkard and there are 2 children, right? Nobody to look after in the family. That child is a child in need of care and protection. So there are so many situations in which a child requires care and protection from state. Every child requires care and protection, right? Every child. But every child is not a child in need of care and protection. The children who require state's care and protection, they are children in need of care and protection. And there is a body which decides whether a child is a child in need of care and protection or not. That body is called Child Welfare Committee. Child Welfare Committee has judicial powers and they have a procedure prescribed in the law. As per the procedure prescribed in the law, any child which is brought before Child Welfare Committee decides whether the child brought before me is a child in need of care and protection or not. And once Child Welfare Committee decides that this particular child is a child in need of care and protection, then that child receives several benefits under various laws that I will come later on. So I've just given you some examples of who are children in need of care and protection, and it's a huge category. Thank you, sir. Neha ma'am, when
a child in need of care and protection is just one category. The other category is child in conflict with law. Neha ma'am, अगर आप हमें बता पाएं कि who is a child in conflict with law, and जो protection system है, who's the nodal agency that decides, जैसे CNCP में सर ने कहा CWC है, तो I believe जो child in conflict with law है उनके लिए JW क्या कहते हैं juvenile justice boards हैं. तो अगर आप हमें थोड़ा वो protection system अगर समझा पाए मैम. Sure. Thank you so much, Vani, for the question. और जैसा कि my distinguished panelists have just thrown an initial light, and Anand Kumar sir also said who are the child who will be covered under CNCP, which is child in need of care and protection. तो जब हम देखिए, जब भी हम चिल्ड्रन की बात करते हैं, उनका एक प्रोटेक्टिव लेक्स स्पेशलिस्ट लेजिस्लेशन है, जो कि जुवेनाइल, इस समय जो लेजिस्लेशन है वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015, जिसके जो प्रोसीजर गवर्न हो रहे हैं वो है मॉडल रूल ऑफ 2016, जिसने दिल्ली वालों को रिप्लेस किया था 2009 को. तो इस समय मॉडल रेगुलेशन लेटेस्ट वो है. अब उसके अंदर दो तरीके के चिल्ड्रन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड हैं, जिसमें एक है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और जो दूसरी डिलिनिएशन है, जो दूसरी कैटेगरी है, वो है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दो कैटेगरी हैं, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी नहीं है, और ये ओवरलैपिंग कैटेगरी है. तो सबसे पहली चीज जो हम बोल देते हैं कि दो कैटेगरी हैं, पर ये दो क्लियर विभाजन नहीं है इन दोनों के बीच में, और ये ओवरलैप्ड कैटेगरी है. क्यों? इसके लिए आप रीसेंट जजमेंट भी देखेंगे, और मैं अपने पॉइंट पे क्लियरली आई थिंक आऊंगी अंत में दोनों को लिंक करके. जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस मदन लोकुर जी की जजमेंट भी थी, संपूर्णा बहरुआ जजमेंट हो गई, और स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑर्फनेज जजमेंट है रिसेंट टाइम्स में, जिसमें ये कहा गया है कि जब हम चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन पे भी अगर पूरी तरह ध्यान ना दें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बन जाए. अब व्हाट डू वी एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज कोई भी बच्चा जो अपने सर्कमस्टेंसेस के कारण, जो अपने सोशो इकोनॉमिक, फैमिलियल, साइकोलॉजिकल, इस पूरे सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन के कारण किसी तरह लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है, और पॉसिबली ऐसा काम करता है जो लीगली, जिसको हम आईपीसी और बाकी धाराओं के अंदर ऑफेंसेस मानते हैं, उस व्यक्ति को हम एक सिमेंटिक दे रहे हैं, जो एक पॉजिटिव स्टेप है हमारे लॉ के अंदर. हम उसे जुवेनाइल ऑफेंडर या क्रिमिनल नहीं मानते, क्योंकि वो चिल्ड्रन है. और इंटरनेशनल गाइडलाइन के तहत, कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड के तहत जो हमारे नए लॉ बने, अब हम उन्हें इसे पॉजिटिव सिमेंटिक देके हम ये बोलते हैं कि नहीं, वो हैं बच्चे, पर वो इन सब सिचुएशंस के कारण पॉसिबली क्राइम में धकेल दिए गए हैं, इसलिए वो किसी ना किसी तरह कॉन्फ्लिक्टिंग विद लॉज हैं, जिनका हमारा पॉसिबल एम है रिहैबिलिटेशन. तो इस कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर में हमें समझना चाहिए कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कौन है, और इफ CNCP also not given enough care and protection, they can also turn into a CCL category. और दूसरा छोटा सा जो आपने सवाल पूछा उनकी प्रोटेक्टिव एजेंसीज का, तो ऑफ कोर्स जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन गिवन है हमारे JJ एक्ट में. उसी के साथ हमारे पास चिल्ड्रन कोर्ट्स हैं, जिस पे शायद मैं आई थ्रो लाइट ऑन इट लेटर, पॉसिबली विद योर subsequent question. जी मैम, थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर. आपने हमें इंट्रोड्यूस कराया CNCP एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, दैट CCL के साथ. Since the webinar is on the challenges that they face, so I'll straight away get into the challenges. Anand sir, अगर आप बता सकें, जैसे आपने पहले कहा कि there are children who are with families who are at risk of being exploited. तो आपने ये भी कहा कि बहुत सारे बच्चे हैं CNCP के अंदर, उनको बहुत अलग अलग बच्चों को डाला गया है वनरेबिलिटी के हिसाब से. तो अगर हम जो चाइल्ड राइट्स अगर देखें तो उनको 3 क्लासिफिकेशन में किया जा सकता है. एक बच्चे हैं जो फैमिलीज एट रिस्क के साथ हैं, दूसरे जो स्ट्रीट पे हैं, एंड तीसरे जो इंस्टीट्यूशंस में हैं.
तो अगर सर आप हमें बता पाएं कि इनके चैलेंजेस क्या होते हैं इन बच्चों के, कि विद इन द इंस्टीट्यूशन एज वेल एंड इन द डेवलपमेंट में उनको क्या कठिनाइयां फेस करनी पड़ती हैं? Okay, so first I will take the children who are in institutional care. जी The first challenge is that the institutional are pathetic. And when I say institutions are pathetic, I don't mean that they are being run pathetic. Institution by default are a measure of last resort, right? Law itself says that keep a child in an institution when there is no other option. So institutions, keeping a child in an institution, even the law says is not the best and the first option. So it's the least preferred option. But because child protection and child care is not a priority area for governance, the condition of the child care institutions is critical. Now, to ask me why condition of institutions is critical, there are many reasons, but I will give an idea about 2-3 reasons. जी सर For example, children need very personalized intervention if they have to be cared, right? Children need time. Children need time. In the institutions, nobody has time. जी सर People have time to write files. People have time to write papers. People have right to do administrative work. People have right to write reports to various authorities. And in terms of priority, the child becomes the last priority. So ultimately, most of the institutions, i'm not I'm not saying there are no institutions which are working well for children, but I'm saying that in general, most of the institutions uh, only serve the purpose of uh, giving children a place to stay and to eat food. जी Beyond that, children don't get much. Second, the, the monitoring mechanism over these institutions are weak. So that's why what is happening in an institution with children, how well they are being kept, whether all the standards of care which are provided in the act, whether they are being provided or not. To check, there are various monitoring mechanisms, but these monitoring mechanisms are not fully functional or not fully effective. For example, I have seen some reports of inspection committees. Now, somebody who doesn't even know how to write a report is doing an inspection. So when you see the report, there is absolutely nothing. As an amicus in Delhi High Court, I was asked to look at the functioning of the inspection committees. When I looked at the inspection committees, we found out that that reports which are coming from the inspection committees are not serving any purpose because the information given in those reports is minimal. So that's why Delhi government and the Delhi High Court both, they decided to come out with certain guidelines as to how these committees will function. Uh, the last option, which is institutionalization, becomes the option of necessity because other non-institutional options are not practiced. When a child is brought before a JJB or a CWC, overwhelming number of children are put into institutions, whether it's a child in conflict with law or whether it's a child in need of care and protection. The first response of protection systems is to keep children into the institutions because that gives them time to work on the case. But once a child goes into the institution, then there is a long process. If you don't put a child in an institution, then other processes can start.
Second category of children you pointed out are children living in families, right? Now, how do we know which child is at risk? Are we saying that somebody will go house to house doing a survey? No, that's not possible. We can't do a house to house survey of children. And how do you measure risk? How do you capture whether children are? There are no fixed standards. So that's why it's very difficult to find out who are children at risk, and that's why government systems like Childline, heavily advertised, heavily promoted, so that children or anybody who knows about these children could report to CWC, could report to police, could report to NCPCR, could report to state commission, and then these systems will come and outreach to the child and then will connect to the child. In law, there is there is a body whose job is to do a survey. Every district has a body called District Child Protection Unit. Now, if you look at the functions which these DCPUs have to perform, one of the functions of these DCPUs, District Child Protection Unit, is a big team. Around 20 people work in that unit. That unit has a responsibility to find out who are the children in that area who might be at risk. Now, how will they do it? In what manner will they do it? That is something which has been left for them to to find out. Third category which you mentioned. Sorry, I'm taking a little time because No, you sir. asked a very heavy. जी, sir. Third category you mentioned was street children, right? जी. Now, who are these street children? Street children is a very liquid population. You can't definitely say whether the child living on the street has a house or not. Maybe he has a house, but he has to live on the street because he has to earn some money. If he stays at home, right? So street children is a very common category. A lot of these children do have a permanent place to stay. For example, if you go to Nizamuddin in Delhi, under the Nizamuddin bridge, you have children living there. So children have a permanent place to stay, but then they survive on rag picking. They survive on begging, or they do some small jobs. Somebody sells pen, pencil, books on the road crossings. Um, Now, these children, street children, has a very unique response in the JJ Act. For catering to the need of street children, the Juvenile Justice Act has a very unique concept of open shelter, right? Okay. Children have come to live on the street because being on the street is the best option for them, right? They have taken a decision to come and live on the street. Why do children go and live at the railway platform? Because railway platform gives them food, gives them sense of safety. So for a child, if you look at from the point of view of the child, being on a street is the best survival decision he can make, because street gives him a family. A child who doesn't have a family finds a family on the street. Similar age group children living in the same circumstances. And family is very important for human existence. They don't have a biological family, but then they develop family on the street. They earn money, they survive there, they have fun, they have their entertainment, their life is on the street. You can't take them to child welfare committee right away, because street and the children have such a strong connection that the children will not adjust to very
normal rehabilitative responses of JJ Act, and that's why under JJ Act there is a non-coercive and pro-agency concept of open shelter. Open shelter run by the government through the help of NGOs, and the open shelters provide children a space to sleep, provide them food, provide them access to medical services, provide them a locker room to keep their money, and they do not have to be produced to the child welfare committee. The open shelter over the time will work on these children and slowly will persuade the children to wean away from the life of street. So it's not a one day outreach and protection. For example, a child calls from home that my neighbor is abusing me. When the child line team comes, takes the child and produces him before the CWC. In case of street children, this is not how it happens. Street children have a place where they want to stay, eat, have access to all the services, and over a period of time, uh, they are prepared to adapt themselves to the rehabilitative models of JJ. Ironically, the practice of open shelter, which is there as a concept in the JJ Act, is by and large absent from the practice of the open shelters. Most of the open shelters run exactly as a children home. So even though in the law there is a difference between open shelter and children home, in reality, open shelter and children home double up as a facility providing same kind of support to the child protection system. So in nutshell, this is it, Vani. ओके सर, आपने कुछ बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहे हैं, जो आई विल बी कमिंग टू देम ड्यूरिंग आवर वेबिनार, हमारा जो डिस्कशन होगा. लेकिन अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो आई थिंक चैलेंजेस जो सबसे बड़े हैं CNCP के लिए वो है रिपोर्टिंग एंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जो लॉ है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. तो ये दो सबसे बड़े थीम्स हैं जो चैलेंजेस जो CNCP फेस करते हैं. अगर मैं गलत नहीं हूँ. एंड नेहा मैम, जो चाइल्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उनके अलग चैलेंजेस होते हैं जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन से काफी अलग होते हैं उनके चैलेंजेस. अगर आप उन चैलेंजेस पे थोड़ा गहराई में बात कर सकें मैम. I was muted, sorry. Yeah. So again, thank you for an amazing question, Vani. अभी CCL की जब हम बात करते हैं और उनके चैलेंजेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो क्या प्रोवाइड करने के लिए कह रहा है, हम वहां पर कहाँ स्टैंड करते हैं और किस चीज में हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में रुक पा रहे हैं या कोई तरह की रुकावट आ रही है और वो हमारे आगे चैलेंजेस हैं, तो उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. तो जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है, उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स में से एक बहुत बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव है स्पेशली इन चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ. तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, पहली चीज तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आते क्यों हैं. Just a second, I think I lost my screen. Am I ma'am? visible? Yes ma'am, you are visible. Can you? Yeah. So पहली चीज तो वो कॉन्फ्लिक्ट में आते क्यों है, ये अपने आप में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिस पे मैं ज्यादा इस समय मैं नहीं बोलूंगी. तो देयर कैन बी अमतीन सोशो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल, इवन साइकोलॉजिकल, जेनेटिक, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट. बट एक बार जब वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, जो हमारे सिस्टम में फर्स्ट कॉन्टैक्ट पे आ जाते हैं और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, अब उस समय के बाद हमारे सिस्टम में क्या चैलेंजेस आते होते हैं. फर्स्ट थिंग, आवर लॉ प्रोवाइड्स फॉर एज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देयर रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन, राइट. तो हमारा प्राइमरी एम उनको अरेस्ट करके किसी जेल में डाल देना नहीं है,
उनके लिए हमने एक ऑल्टरनेट सिस्टम बनाया है, अगर मैं लेमैन के लिए एड्रेस करूं ये चीजें तो जो ऑल्टरनेट एडजुडिकेशन सिस्टम है उसके ऑल्टरनेट एक आउटकम्स भी हैं, और वो जो आउटकम है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, देयर आर 3 नीड्स. सो देयर इज प्राइमरी नीड, सेकेंडरी नीड एंड टर्शरी नीड. प्राइमरी नीड में हमें देखना है कि उनकी जो सेफ्टी है हम उन्हें दे रहे हैं, हम उन्हें न्यूट्रिशियस खाना दे रहे हैं, हम उन्हें हॉस्टाइल एनवायरनमेंट से दूर रख रहे हैं, हम उन्हें ऐसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में रख रहे हैं जहाँ पे आपस में लड़ाई ना हो, एक दूसरे को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना करें. But what is the secondary need? If they are having any kind of mental trauma, if they are having any kind of mental, support system requirement, we should be able to give them counseling sessions, psychological sessions, psychiatric session, then also their capacity building towards rehabilitation. तो और ताकि वो जब इस सिस्टम से निकल के इस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर जाएं तो हमारी जो दूसरी जो आउटकम है वो है क्या, उनको सोसाइटी में हम एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिस्टोर करते हैं. अब ये अगर हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, चैलेंजेस जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें जिसको कहते हैं रिहैबिलिटेशन, और फिर उनको रिस्टोर बैक करें जिसको हम कहेंगे सोशल रीइंटीग्रेशन, अगर ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमारे पास कई चैलेंजेस आ जाते हैं. पहला लॉ के अंदर के चैलेंजेस और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज. तो जो पहला लॉ का चैलेंज है, क्या हमारा लॉ इस समय इतना सक्षम है दैट कैन बी इवन टॉक ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन. सो हमारे नए एक्ट में भी हो सकता है ये कॉन्शियस डिसीजन हो, फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए लॉ को, क्योंकि हर चीज को जब डिफाइन कर दिया जाता है तो वो इट ऑल्सो बिकम्स अ लिटिल रिजिड. So, though our law in section 39 talks about rehabilitation reintegration process, and in section 53 it talks about the services which should be given, जो education से लेके mental health intervention से लेके कई हैं, आज भी उस चीज को डिफाइन नहीं किया हुआ. अब उससे पहला चैलेंज क्या बनता है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं जे सिस्टम के, उन स्टेक होल्डर्स में मैं नहीं बोलूंगी सबको नहीं पता, पर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कई स्टेक होल्डर्स नहीं समझ पाते कि रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन करने के लिए हमें करना क्या है. व्हाट इज द स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी, इज देयर वन मेथड, एंड देन क्रीप्स इन आइडिया ऑफ डिस्क्रिशन. जैसा कि सर ने कहा, ओपन और शेल्टर होम में देखिए कितना फर्क है, लेकिन किस तरह चलाया जा रहा है. तो क्या उसकी एक स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी हमारे रूल्स में हो सकती थी? ये पहला चैलेंज है जो मुझे लगता है लॉ को आंसर करना पड़ेगा, पॉलिसी फ्रेमवर्क को आंसर करना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी नहीं बता रहे, अब अगर एक एनजीओ ने 5 सक्सेस स्टोरी दे दी तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम सक्सेसफुल है? आई डोंट थिंक हम कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम सक्सेसफुल है. सिस्टम फेलियर या सक्सेस कैसे है, आप उसे चेक कैसे करेंगे, जब एक पूरी स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसके अंदर जो भी बच्चा उस सिस्टम के फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आखिरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और आखिरी के बाद भी हमारा लॉ आफ्टर केयर और स्पॉन्सरशिप की भी बात कर रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे रुकता नहीं. उनकी ट्रैकिंग we don't even know till now for CCL, once they are out of institutional framework, उनको ट्रैक कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है. आई थिंक मैडम और सर जो इस सिस्टम में है, दे कैन प्रॉब्ली थ्रो मोर लाइट ऑन इट. तो पहले जो चैलेंज आ जाता है वो लॉ के ऊपर आ जाता है. दूसरा चैलेंज जब मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करती हूँ, ये भी इससे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली फर्स्ट थिंग इज दैट देयर हैज टू बी, अभी तक हमारे सिस्टम में जितनी मेरी एम्पिरिकल स्टडी रही है इस एरिया में, मैं ऑलमोस्ट 5 साल से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो जितना मेरा डेटा कलेक्शन हुआ और उसके बेसिस पे मेरी जो स्टडी है उस पर मैं डेफिनेटली बहुत सर्टेनिटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे एक्ट में कई सारी चीजें दी गई हैं जो कि टेलर मेड, जो बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंडिविजुअल केयर प्लान, जिसके बेसिस पे सीसीएल को हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में रखेंगे. अब इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर्म 7 में दिया जाता है, जिसमें एक हर बच्चे की नीड्स के हिसाब से व्हाट कैन वी डू ड्यूरिंग द पेंडेंसी, ऑब्जर्वेशन होम में, फिर उसके बाद स्पेशल होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में. बट ये मैं बहुत सर्टेनिटी से आपको बताती हूँ कि उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उस फॉर्म के परफॉर्मा का, वो ही भरा जाता है. तो जो फाइल्स हैं
उन फाइल्स को जब आप खोल के देखेंगे तो ICP इज नॉन एग्जिस्टेंट इन इंडिया, दो इट हैज बीन रीइटरेटेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आल्सो कि अब हमें इस प्रैक्टिस में आना पड़ेगा कि हम ICP को ड्राफ्ट करें। और ICP को कैसे ड्राफ्ट करें, उसमें भी आप किन किन की पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, कौन डिसाइड करेगा व्हाट इज द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड, कैन एन ICP बी ड्राफ्टेड ओनली बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, और ICP में या पार्टिसिपेशन लेंगे बच्चे की भी, उसके वेलफेयर ऑफिसर की भी, केस वर्कर, प्रोबेशन ऑफिसर, शायद उसकी फैमिली और पीयर की भी, क्योंकि एक बार जब वो वहां से निकल रहा है तो आप कैसे फ्रेम करोगे। प्लस फिर बहुत सारी बजटरी प्रॉब्लम है जिससे बच्चा प्रभावित होता है। जैसे कि पहली जो SIR रिपोर्ट ही बनती है, स्पेशल सोशल इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, जिसके बेसिस पे जज भी डिसाइड करता है आगे का प्लान ऑफ एक्शन। प्रोबेशनर ऑफिसर्स बहुत लेस हैं। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था DCPU का कि किस तरह उसकी टीम बड़ी है। मेरे डेटा जो मैंने कलेक्ट किया है दिल्ली में, तो दिल्ली के लिए मैं बता सकती हूँ जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो DCPU रहते हैं, उसका मेजरली काफी भारत के कई प्रांतों में शायद ये सच होगा, उनका जो स्टाफ है, देखिए DCPU JJ एक्ट की नोडल एजेंसी है, तो DCPU has a lot of power as well as responsibility, but it becomes a major challenge because DCPU के mostly staff contractual होते हैं। तो जब वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ इज कलेक्टिंग द रिपोर्ट्स, हाउ डू दे टेल दैट व्हाट एक्शन नीड्स टू बी टेकन फॉर पीपल हु आर हायर इन हायरार्की। देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ वाला व्यक्ति नहीं बोल सकता प्रैक्टिकल सेंस में, जिसको अपनी नौकरी की चिंता है कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये चीजें करनी चाहिए, सो दे विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी। सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स बट विच फॉर्म अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर सफिशिएंट नहीं है, उनके पास सफिशिएंट फंडिंग है, तो वो लोकेलिटी में जा जाके कई बार रिपोर्ट ही कलेक्ट नहीं कर पाते, और वो पेरेंट्स को लाइन लगा के, आप देखेंगे JJB में जहाँ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के ऑफिस रहते हैं, वहां पेरेंट्स आके वो रिपोर्ट लिखवाते हैं। व्हाट इज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, दे आर सपोज टू इन्वेस्टिगेट क्या एनवायरमेंटल कंडीशन है, इस बेसिस पे ICP बनेगा। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट हो जाती है उस बच्चे पे, जिस तरह वो रह रहा है, किस तरह की मेंटल इंटरवेंशन होगी, एंड इवेंचुअली फिर जो वोकेशनल ट्रेनिंग और सब बहुत, और मैं सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं बोलूंगी, बहुत सारा पॉजिटिव काम भी हो रहा है। दिल्ली की सिचुएशन बाकी स्टेट से बहुत अच्छी है, पर उसी के साथ होता क्या है, जब एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर्ड जी के तहत ट्रेनिंग्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सारी चीजें नहीं की जाती जिसकी मार्केटेबिलिटी वैल्यू हो, तो हर बच्चा उस चीज से कैपेसिटी बिल्डिंग क्या इस स्टेट में कर पाता है कि वो बाहर निकलने के बाद सच में एक जॉब ले पाए, या उनमें से 4-5 बच्चे ही बस रिहैबिलिटेट होते हैं। तो ये बेसिक चैलेंजेस है। सो इन ओनली व्हेन वी लुक एट द इनिशियल चैलेंजेस can we then move ahead with the more complex of the problems. I think in a nutshell, if I would not have taken more time, these are the basic issues. जी मैम, थैंक यू, एंड आनंद सर थैंक यू सो मच, आपने जो ब्रॉड चैलेंजेस हैं वो एक्सप्लेन किए। रोजी मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू स्पेसिफिकली, क्योंकि अब जो जैसे सर ने बताया CNCP में अलग अलग बच्चे होते हैं, उनकी वनरेबिलिटीज अलग होती हैं, तो मैम कमीशन में आप चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे आपका काम फोकस्ड है, तो मैम इफ यू कैन टेल अस व्हाट आर द कंटेम्पररी चैलेंजेस of children who are vulnerable to child trafficking or child labor, and आपके ऑफिस में जो interventions किए हैं, initiate किए हैं for their protection में। एक्चुअली अब दोनों का सुन के मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ और करना चाहिए, बट फॉर टाइम बीइंग इन NCPCR, जैसे मैंने पहले भी बोला, वी आर मॉनिटरिंग इट, एंड नाउ एज एन चाइल्ड लेबर member, I am the first member being appointed to look after child labor. इससे पहले ये एडिशनल चार्जेस में ही होता था कि कोई मेंबर अपना सब्जेक्ट लेगा और ये एडिशनली लेता था। तो it is like the first time came here when I saw the complications here. इतना सारा लॉ बना दिया है, उसको फॉलो करना सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। Even for me as a member, I hope the same goes through all the authorities. And then there is a issue of what has to be done, कौन करेगा, like
in the matter of trafficking we see it is MHA doing it, and then we say labor में भी trafficking हो रहा है. So इसमें जो conflict है ना, ये बहुत ज्यादा है. जो authority का conflict जो होता है, किसको कैसे देखेगा? While coming to ministry, same issue. Is it like the labor ministry that has to see being a labor issue, child labor issue, or it is the matter of the WCD who is looking after the children issue? ये भी बहुत क्लियर करना बहुत जरूरी है अभी के टाइम पे. और दूसरा चीज अभी जो दोनों बोल रहे हैं, आई थिंक सिनर्जी या कन्वर्जेंस नहीं हो पा रहा है काम का. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. पीपल आर नॉट गेटिंग कि कौन करेगा ये सब. अगर आपका रोल फंक्शन ही क्लियर नहीं हो रहा है, एक एसओपी एमओएलई निकालता है, एक एसओपी एनसीपीसीआर, एक डब्ल्यूसीडी, तो रोल डिफाइन नहीं हो रहा है. और प्लूरलिटी बहुत चलता है यहाँ पे इंडिया में स्पेशली फाइव से. And then the major issue here, what I felt as a member, it's my personal opinion if I have to mention that, कि our laws are all copy pasted from somewhere out, if I can say that, at liberty to say that. और यहाँ जो इंडिया की क्या जरूरत है. अभी अनंत जैसे बोल रहा था, वो बच्चा स्ट्रीट में रहना चाहता है, उसको जबरदस्ती हम लोग लेके जाते हैं. That is not the way we can do it. The same things happen with trafficking and child labor too. अब बच्चा 15 साल का हो गया है, उसको in गांव, in villages, it's very obvious that when child is big elder, he comes out to work and support his family. बहुत सारे गांव में होता है, हमारे यहाँ भी होता है. तो he wants to go and work, and the act says, the labor act, आप नहीं कर सकते काम, but उसमें लिखा है कि आप non hazardous कर सकते हैं. So the whole confusion goes through it, Vani, and then there is a whole circle. People start hiding it. They fail to report it because they want to really work as in teenagers, as in 15-year-old, as a 17-year-old, to earn money to eat. The basic thing, roti kapra makan. अब उसके लिए उसको काम हम करने नहीं देंगे because legally वो मना है. उसको तो पता नहीं है ना hazardous, non hazardous क्या है. अगर मैं आज सोचती हूँ as an जो बहुत गरीब है, जो पढ़ लिया होगा क्लास 8, अभी RT अब 12 तक होगा, पहले 8 तक था, वो पढ़ लिया, इसके आगे वो क्या करेगा? कमाना चाहेगा, वो आके कमा ले. तो आई थिंक वी शुड सपोर्ट इट समवेयर. वी शुड नॉट बी लाइक फॉरेन कंट्री से कुछ लो, मतलब छाप दिया यहाँ पे एंड वी फॉलो इट. आई वांट टू नो, आई वांट इन माय कमिंग ईयर्स आल्सो आई विल आल्सो बी रिकमेंडिंग दिस. हम लोग को इंडियननेस की थ्रू ही हमको अपना रूल भी बनाना चाहिए, लॉ भी बनाना चाहिए. Even with JJ Act, I see that it's not necessary कि we do more things, we do more things. हम लोग को और add करो या वो नहीं करो. We can just strengthen the existing ICPS system. अभी जैसे दोनों ने कहा, why Delhi is very upfront and doing very work. I think this was Anant who told me one day कि CWC का per sitting का fees, Anant was telling me, that is higher than whole of the India. तो CWC लोग अपने काम को भी बहुत महत्व देते हैं, और जो लोग अप्लाई करते हैं वो भी बहुत अच्छे कैलिबर से होते हैं, जैसे कि फॉर्मर जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वेरी गुड सोशल वर्कर्स. द सेम थिंग वी कैन नॉट सी इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं इन ICPS सिस्टम ऑल्सो. एंड एज ए मेनी पीपल डोंट वांट टू बी मेंबर्स ऑफ JJB और CWC बिकॉज पैसा बहुत कम है, एंड they don't have any interest in that. Coming to my point again, I think trafficking will be a very big challenge. It is a very big challenge, and it's very complicated issue. I always say this, it's disguised, it's disguised. We cannot, कोई बोलता ही नहीं trafficking हुआ है. In India, what I see in FIRs, what we see, अगर हम लोग को एक बच्चा मिलता है child labor में, तो हम उसको पूछते हैं कहाँ से आए आप, वो बोलता है बिहार से आए, झारखंड से आए. लेकिन पुलिस के FIR में कहीं भी आपको वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला सेक्शन दिखेगा ही नहीं आपको. तो उसमें हम कैसे एज ए मॉनिटरिंग बॉडी, इफ वी से ये कैसे हुआ, वो पुलिस वाला भी ऐसे ही रिप्लाई करता है कि वो आ गया है अपने आप से, अपने माँ बाप के साथ. बट आई मीन टू से एज पर द डेफिनेशन ऑफ लीगलिटी इफ वी गो, इट इज ट्रैफिकिंग. तो वो सारी चीजें, मतलब सबका कंफ्यूजन इतना ज्यादा है लीगलिटीज को लेके, रूल्स को लेके, प्रोसीजर्स को लेके. I think maybe because child rights is a new thing for India, and in coming years, I think और थोड़ा सुलझेगा, and we can also, all of us can try a bit of ours.
नहीं मैम, आपने ये बहुत सही पॉइंट, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट चाइल्ड ट्रैफिकिंग इटसेल्फ के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन है उसमें लेबर को डिफाइन किया गया है एज एन एक्सप्लॉयटेशन, एंड अगर वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो भी ट्रैफिकिंग हो। तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ लॉज एंड अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। होल्डर्स जो है उनको भी कि ये केस चाइल्ड ट्रैफिकिंग है या ये केस लेबर है। दैट इज वेरी relevant point, ma'am. Thank you for putting that out here. I know you have been very much interested in the rights of disabled children, and there is something चेतना जब कर रही थी तो हमने भी ये फील किया कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन या डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन जो है उन्हें जो सोसाइटी में अनसीन किया जाता है, उनको एज यू नो हमारी सोसाइटी बहुत एक्सेसिबल नहीं है उनके लिए, और उनको स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन बहुत फेस करना पड़ता है। तो मैम एज अ कम्युनिटी आपको क्या लगता है कि हमारा रोल क्या है कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन और डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन चैलेंजेस हैं उनको हम कम कर सकते हैं और उनके राइट्स को हम Vani, can you hear me? The connection is with. हेलो मैम। जी मैम। Yeah, can you hear me? Yeah. जी जी मैम। were you I cannot hear you. हेलो मैम। Yeah. जी मैम आई वाज आस्किंग मैम, डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है, मुझे पता है आप बहुत ही इंटरेस्टेड हैं उनके राइट्स के बारे में, तो अगर आप हमें बता सके उनके चैलेंजेस क्या हैं और हम एज अ कम्युनिटी क्या कर सकते हैं तो हमारी सोसाइटी है उनको और एक्सेसिबल बनाना। You know, with the disabled people, हम लोग को दिखता है उनका disability, पर उनको भी लगता है ना, as in human, they also feel we are human, we need to contribute. And the first thing as in community or just being human, we need to accept them. ये होता है कि स्कूलों में रेलिंग बना दिया, आरटी एक्ट के तहत कि आप आ जाओ, या रिजर्वेशन दे दिया, बट एज इन कम्युनिटी व्हाट आई फील इज वी एनकरेज देम। यू नो, इंक्लूसिव होना बहुत जरूरी है, इक्वल राइट्स देना बहुत जरूरी है, लेकिन वो दिखना भी चाहिए। जस्ट बिकॉज लॉ में है करके आप करोगे वो नहीं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई हैव टू से इज, यू नो, many children drop out from school because they are disabled. रेलिंग भी है उनका, वो रिजर्वेशन भी होता है, सब कुछ है, बिकॉज यू नो दे आर नॉट एक्सेप्टेड, दे आर बीइंग टॉन्टेड एज यू नो आप डिसेबल्ड हो करके। एंड व्हाट आई सी इन ए कंट्री लाइक इंडिया, डिसेबिलिटी जस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी पे बहुत इंपॉर्टेंस है, बाकी डिसेबिलिटीज पे हम लोग नहीं देते। You know, I don't know the word that I want to use. It's like autoimmune disability, or they say some word, you know, like cerebral palsy or autism. They don't give the importance. I don't know why. I personally feel as a member or as a human also, those people also have right to live, and उसके लिए भी हम लोगों को काम करना बहुत जरूरी है। हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बात करें तो उनको बस फिजिकल डिसेबिलिटी वाला बात करते हैं, but this kind of disability has to be given importance, because these children are of, we cannot say they are useless, or we cannot say they are not human. Even they deserve to live human life with dignity. और इन सब एरिया में ना बहुत काम करना बाकी है इंडिया को। जी नहीं मैम, ये पॉइंट आपने बहुत सही कहा। आई ऑल्सो रेड अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स जहाँ पे उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग जो लॉकडाउन के समय ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन स्कूलिंग हो रही है, एंड दैट इज नॉट वेरी डिसेबल्ड चिल्ड्रन फ्रेंडली। यहाँ पे बच्चे जो हैं उन्होंने कहा है कि बी ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल क्योंकि ऑनलाइन में दे आर नॉट अंडरस्टैंड, नॉट एक्सेसिबल टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो वो एक बहुत इशू हो जाता है, एंड आई लॉट ऑफ नीड फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस, क्योंकि जब तक इंकरेज नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे, तब तक वो चेंज नहीं होगा। तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम, थैंक यू सो मच। You know, when we are talking about challenge, there's this when we look at what's happening around in the span of last year, we've had a lot of situations जैसे डेथ राइट्स हो गए, भैंसा राइट्स थे, अफगान जो था, एंड अभी आसमान थे, and obviously COVID-19. In conflict situations और disaster situations की तरह categorize किया जाता है। And Anand sir, I would like to put this question to you
कि सर इस जब ये ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स होता है या डिसीजन मेकिंग होता है, तो इसमें बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होते हैं, क्योंकि उनकी आवाज नहीं सुनाई देती इन ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स में। तो अगर आप हमें बता सकें कि जो बच्चे हैं जो ऐसी सिचुएशन में हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा है और उनकी कोई गलती नहीं है, एंड इट इज अ वेरी सिचुएशनल टाइम बाउंड, वो तो इस सिचुएशन में बच्चों के चैलेंजेस क्या हैं और क्या किया जा सकता है एज ए ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स जो है, उसमें ऐसा क्या किया जा सकता है जिसमें उनकी आवाजें सुनाई दें। सर आपका माइक म्यूट है। जी सर। ओके, जी सर। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए लिया जाना चाहिए, वो है कि हम उनके जो राइट्स और जो लॉज हैं जी उन पर कोई कंप्रोमाइज ना करें, जी है ना? जी क्योंकि बच्चे सोसाइटी की सबसे वल्नरेबल सेक्शन हैं और आगे की जो जनरेशन है वो इन बच्चों पे ही डिपेंडेंट है। और क्राइसिस कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, जी उस क्राइसिस की वजह से किसी भी राइट को डाइल्यूट कर दिया जाए जी या कोई बच्चों के लिए कोई प्रोटेक्शन है उसको उसको प्रायोरिटी से बाहर कर दिया जाए, वो सबसे बड़ा डिजास्टर होगा, वो डिजास्टर के ऊपर का डिजास्टर। जी और इसीलिए बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत है कि सिचुएशन चाहे जितनी भी डिफ़िकल्ट हो जाए, बच्चों से जुड़े लॉज को ट्वीक ना किया जाए, उनके जो जी राइट्स हैं उनको उनको आल्टर ना किया जाए, और जी उन राइट्स को डिलीवर करने वाला जो मैकेनिज्म है, जैसे जी कोविड के टाइम पर ही हुआ, इसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर करना जी बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो बेसिक कोर सर्विसेज हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो कमेटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, आप उसका रिकमेंडेशन देखें, अप्रैल 2020 में आया था वो। उसमें कहा गया कि कोविड के टाइम पर कोर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को इसेंशियल डिक्लेयर किया जाए, जी राइट? जी लेकिन केवल ऑब्जर्वेशन होम, फॉर एग्जांपल जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इनको इसेंशियल डिक्लेयर न करने से इनका बच्चों के लिए काम करना प्रॉब्लम हो गया। डिसीजन कौन जी लेगा अगर जेजेबी काम नहीं कर रही, सीडब्ल्यूसी काम नहीं कर रही? तो मुझे लगता है कि दो चीजें, तीन चीजें मैं कहूंगा नटशेल में, मुझे पता है टाइम जी बहुत फास्ट निकल गया अपना। तीन चीजें जी कि बच्चों से जुड़े मुद्दों पर जी विजिबिलिटी इंक्रीज की जाए, लोग इसके बारे जी में बात करें, लोग इसके बारे में लिखें, जी न्यूज़पेपर्स, मीडिया बच्चों से जुड़े मुद्दों को प्रोमिनेंटली हाईलाइट करें। बच्चों के मुद्दों पर काम करने वाले लोग इन मुद्दों को निकाल करके सरकार और कोर्टों के सामने लाएं, ताकि बच्चों से जुड़े जो वायलेशंस हैं वो उनको ग्रेटर विजिबिलिटी मिले। दूसरी चीज़, बच्चों से जुड़े जो लॉज हैं उनमें किसी भी तरह का कोई भी ट्वीकिंग न किया जाए, किसी भी तरह का कोई डायल्यूशन न किया जाए किसी भी डिजास्टर के लिए। और जी तीसरा, बच्चों के प्रोटेक्शन की सर्विसेज डिलीवर करने वाला जो कोर चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम है जी उसकी मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट न की जाए। जिस तरीके से पुलिस इंपॉर्टेंट है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उसी जी तरीके से बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए कोर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को इसेंशियल डिक्लेयर करके उनके फ्री मूवमेंट को फैसिलिटेट और इंश्योर किया जाए। मुझे लगता है ये तीन चार चीज़ें मौजूदा हालात में, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट,
they are very important to be practiced by everybody, particularly by the governments. जी जी सर, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि जैसे अभी हमने, जैसे आपने बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के राइट्स को विजिबिलिटी मिले। मैंने कोविड के बारे में कहा था, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो हमारा सिनेरियो है उसमें चाइल्ड राइट्स, कोविड के टाइम में जो चाइल्ड राइट्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करें। रोजी मैम, ने जहाँ तक पढ़ा है, जो आर्टिकल आ रहे हैं और जो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये है कि कोविड के बाद एंड आई थिंक इवन ड्यूरिंग कोविड देयर इज प्रिडिक्शन कि चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस बढ़ जाएंगे, and there's going to be an exponential increase in their cases and the reporting of these cases. So ma'am, agar aap hame bata sake ki what should be the institutional and community based interventions or measures that can be taken कि हम ये जो rise है इसको हम curb कर सकें and we can fight child trafficking and child labor. Vani, this is a tough one, I have to say. वैसे एज एन पर्सनल लेवल और प्रोफेशनल लेवल अभी जितना कोविड में काम किया है, अब तक इसको एसेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रहा है. यू नो, देयर वाज ए रेस्क्यू वी डिड इन मधुबनी, बिहार, और एक त्रिपुरा की लड़की को हमने रेस्क्यू करा के रिपार्टिएट करा. होल द थिंग वाज ट्रैफिकिंग एंगल वाज देयर, एंड यू नो द रिवर्स माइग्रेशन इज वन ऑफ द इश्यूज दैट वी आर सीइंग. अभी इस समय ये बोलना कि हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, ये करना चाहिए, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रहा है. बिकॉज यू नो समवेयर अभी जैसे आनंद भी बोल रहा था, मैं भी बोलना चाहूंगी, जो भी अथॉरिटीज जो चाइल्ड प्रोटेक्शन में काम कर रहा था, चाइल्ड राइट्स में, जैसे पुलिस हो गया, उनका झुकाव ज्यादा अभी कोविड से लड़ने में चला जा रहा है. जो जैसे ये जो सिस्टम चल रहा है, जितने भी ऑफिसर्स है या डीसी है या डिस्ट्रिक्ट में भी जितने हैं स्टेट में, दे ऑल आर फाइटिंग फॉर कोरोना नाउ, you know, and child rights has become a second most important thing. So ऐसा चल के अभी जो whole mechanism of child rights is also being shifted, you know, inclined to the corona, fighting against corona. So abhi at a time it's very difficult to say, but at the same time what we have seen, you know, practically, that many people have lost their jobs, many people have come back to their own villages, and I think once ye unlockdown खुलेगा तो धीरे 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 there will be more child labor and trafficking. I have to say that. और trafficking भी इस बार I think as in जितना हम पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं ट्रैफिकिंग के इश्यूज को, ये ट्रैफिकर्स भी नए नए दाव पेज यूज करते हैं. अभी मुझे लगता है इट विल गोइंग टू बी, पहले क्या होता था कि कम से कम दिखता था, रिपोर्टिंग होते थे, अब मुझे लगता है और भी छुप छुप के होने लगेगा ये. और इसमें भी मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे जेजे में लिखा है कि विलेज लेवल यू नो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी होनी चाहिए, वो काम करनी चाहिए. मुझे लगता है ये सब चीजें अभी हमको और काम करना पड़ेगा. एंड एज ए नेशनल यू नो टीम हियर एट दिल्ली, मुझे लगता है कि स्टेट में ज्यादा होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा होने चाहिए, यू नो. और जैसे अभी अनंत कह रहा था कि या कोरोना इज देयर, द पेंडेमिक इज देयर, देयर हैज टू बी, बट व्हाट अबाउट द चाइल्ड राइट्स? You cannot keep it as an you know secondary issue. We have to give it importance. अब क्या हो रहा है कि recent times में जैसे अभी मैंने बोला, लोगों को खाने नहीं मिल रहा है. The recent case was in Assam, I think. Somebody was selling her own I think child, बच्चा बेच रहे थे वो लोग. तो हमें ये पता चलता है कि ये कैसे चल रहा है, you know. And because child labor is very very cheap in India, child labor is very cheap in India, it's very easy to traffic them, there will be a rise. And as an you know authority or as an jitne bhi bodies hai, I think we have to be, yes, we have to come with new strategies. New strategies should include ki abhi hum log kaise milke साथ में काम करें. More of the reporting should be done, कि छोटे से छोटे चीज में हमको रिपोर्टिंग आए कि उस पर हम संज्ञान ले सके. वैसे ही यू नो एक भी अगर कंप्लेन आए उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. स्टार्टिंग विद दैट, we have to start with that, and then in coming days I think when the picture is more clear on trafficking, child labor and corona thing, we should make new strategies according to that. जी मैम, ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट्स कहे हैं, बिकॉज जो रिपोर्टिंग है दैट इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर इज अ वेरी डिस्गाइज्ड प्रैक्टिस. तो अगर रिपोर्टिंग नहीं होगी तो वो पता नहीं चलेगा, डेटा नहीं कलेक्ट हो पाएगा. तो एज अ कम्युनिटी आई थिंक दैट इज
the most important thing that we can do, that is report these cases if we find that there is any child labor, या आपके घर में किसी घर में बच्चे को काम कराया जा रहा है तो आप वो रिपोर्ट करें। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। आई वुड नाउ आस्क अ क्वेश्चन टू नेहा मैम। मैम, जो ये कोविड के समय, आई नो हम CNCP के बारे में बात करते हैं, तो दे आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड पीपल, चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। मैम, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं, उनके जो हाउ हैव दे बीन इम्पैक्टेड बाय द कोविड पैंडेमिक एंड द लॉकडाउन, जो आपको पता चला है, व्हाट डू यू थिंक हैज बीन द इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ? Right. See, children in conflict with law per se, I have not been able to collect any data क्योंकि ये तो बिल्कुल ही world pandemic situation है which is unprecedented in its nature. लेकिन इसी के साथ साथ of course there were guidelines, the initial guideline itself, जिसमें कि सारे of course इनके institutional homes हैं, पर prison के लिए भी guidelines निकली गई थी कि अंदर ही अंदर, तो जितना भी हमारा ये लेग स्पेशलिस्ट एक्ट बच्चों का है, जो भी पहली चीज जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर बच्चे हैं उनको हम किस तरह प्रोटेक्टेड रखें। अब हमारे पास गाइडलाइन ये है कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्पेशल पुलिस यूनिट, जो जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, अगर वो किसी बच्चे को इस दौरान में, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो कि बहुत ज्यादा प्रोन है पेंडेमिक के प्रभाव से भी, और क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा भूखमरी से देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन देयर, तो इन सारी चीजों में जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली पड़े हुए थे, स्ट्रीट पर हैं, दे आर CNCP एज वेल एज दे आर इन हाई रिस्क ऑफ टर्निंग टू BCCL। पहली चीज जो इंस्टीट्यूशनल, हम पहली बात करते हैं प्रिवेंशन की, प्रिकॉशन की, और उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट कैन बी डन विद इन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो प्रिवेंशन वाली सिचुएशन पे ऐसी एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि ऐसा there is going to be a major rise in more increase of CCL because of the sheer unavailability of sufficient opportunity. There might be a possibility कि जो petty crimes और जो serious crime वाले cases हैं वो बढ़ जाए। तो एक चीज ये है, क्योंकि कई लोग उसमें से, कई बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे ऐसे ड्रग्स में पड़े हैं जिनको बहुत महंगा नहीं है वो, विच कैन वी कॉल इट, वी डोंट कॉल इट ड्रग बट सब्सटेंस अब्यूज बोलते हैं, जिसमें वो वाइटनर और वाइट फ्लूइड जैसी चीजों के भी एडिक्ट, अब वो 50 रुपए में किसी भी दुकान से मिल जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब कई सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो रही, प्रोबेबली दे विल टर्न टू पेटी थेफ्ट्स एक्सेट्रा, वो इस सिस्टम में आ जाएंगे। अब जो भी बाहर से बच्चा अंदर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में आ रहा है, तो विद इन प्रोबेबली ऑब्जर्वेशन होम में जो बच्चे को अभी रखा जा रहा है, क्योंकि 24 घंटे से ऊपर, तो मतलब ये तो जुडिशियल लॉ ही बोल रहा है कि उनको ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया जाएगा। फिर अभी अगर JJB नहीं बैठ रही है रेगुलर बेसिस पे, तो वो जो बच्चा है उसकी बेल एप्लीकेशन पे तो कोई सुनवाई नहीं होगी, तो वो इस पूरे पीरियड में ऑब्जर्वेशन होम में रहेंगे वो सारे बच्चे। तो जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं उनको भी इस पेंडेमिक का खतरा हो सकता है। जो बाहर से बच्चा निकल के आ रहा है उसको डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जो सेक्शन 18 के अंतर्गत कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा ये इट शुड बी एन एंडीवर ऑफ द JJB सिस्टम, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम रादर, नॉट जस्ट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज थिंग, दैट द चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुड बी एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तो कोविड के चलते उनका जो नंबर है जो ऑब्जर्वेशन होम में एंड अप कर सकता है, दैट कैन बी रियली शॉर्ट अप, प्लस दे आर ऑफ कोर्स एट अ मोर हाई रिस्क and medical facilities, so we all know what is the situation. It is not a very fortunate situation that is running, and therefore these children being in the more vulnerable group, ऑफ कोर्स कोविड के दौरान ये खतरा बढ़ सकता है, और इस पर सुपरविजन की एबिलिटी जो है इस समय कम है। तो डेफिनेटली इट कैन डेफिनेटली हैव अ वेरी वेरी ग्रेव इम्पैक्ट विद इन द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिकॉज उस तरीके की वेरी स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर भी अर्जेंटली मिलना मुश्किल है। और वो पूरा दौर, अगर 6 महीने ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, और अगर इस पे जैसा कि अनंत जी ने बोला कि अगर रेगुलर सिस्टम नहीं चल रहे और वो सारे बच्चे उधर ही भरते जा रहे हैं, तो देर आर ऑल्सो द डायरेक्ट प्रॉब्लम्स एज वेल एज इनडायरेक्ट प्रॉब्लम ऑफ ओवर क्राउडिंग एक्सेट्रा, देर
you know, it will reflect on many other things. So it has a very domino effect कि एक चीज का Absolutely, a butterfly. Yes, absolutely. A जी domino effect which will reflect. And then, of course, we don't have any statistics. There is no way to right now assess. But जो adult prison system था, उसके ऊपर तो काफी reports आई कि किस तरह उधर अंदर ही अंदर कितने cases बढ़ गए, and for the time being उन adult prisoners को छोड़ा गया, लेकिन बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, और जो street children है उनके साथ क्या करेंगे। और इस समय तो इतना mass exodus हुआ, तो ट्रैफिकिंग के केसेस, ILO का एक एस्टिमेशन आया है that COVID is going to have a very major impact on child trafficking cases. So ये जो CCL, CNCP, child trafficking में जो बच्चा फंस जा रहा है, देखिए जिनको सब्सटेंस अब्यूज में जो पड़े हुए हैं, there are even higher chances that they will get into that vicious circle of probably they'll be the victims of even child trafficking. And as जी ma'am said, alternate or you know, there is a duplication of a lot of acts. कितनी बार कौन सा एक्ट कहाँ पे लगाया जाएगा। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट है, जेजेबी है, पॉक्सो है, तो कौन सी चीजों में कौन सा एक्ट लगेगा और किस तरह से वो बच्चा कहाँ एंड अप कर जाएगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग टास्क, एंड ओनली you know, this we can only estimate right now, but it is international organization WHO की estimates हैं, ILO की estimates है that COVID is going to have a very very high risk impact on child trafficking as well as vulnerable children. They fall in vulnerable category, and it will reflect within for children in conflict with law also. जी जी थैंक यू मैम। व्हेन जब हम कोविड के बारे में बात करते हैं तो इट वुड बी वेरी रॉन्ग जो अगर हम माइग्रेंट चिल्ड्रन के बारे में ना बात करें, क्योंकि उनके जो इमेजेस थे, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रास्ते पे चल रहे हैं, that has been imprinted in the minds of everybody in our country. So I won't talk about the challenges of those children because वो बहुत ही well documented है, न्यूज रिपोर्ट्स हैं, न्यूज आर्टिकल्स हैं। आनंद सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो माइग्रेंट चिल्ड्रन हैं उनका जो चैलेंजेस हैं वो तो हम जानते हैं, लेकिन अगर आप हमें बता सकें कि फ्रॉम अ कम्युनिटी पर्सपेक्टिव और फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन पर्सपेक्टिव व्हाट शुड बी डन टू इंश्योर कि इनके राइट्स प्रोटेक्ट किए जा सकें। अब तो वो एक्सोडस हो गया, उनको बच्चों को उनके विलेजेस में पहुंचा दिया गया है, लेकिन अब उन जहां जहां वो बच्चे हैं उनके लिए उन एरियाज में क्या करना चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सर आपका माइक म्यूट है सर। जी सर। I'm very thankful for bringing up the issue of children of migrant workers because, as you said, we saw what happened. And now what is required to be done is to drastically upgrade sponsorship program. जो JJ एक्ट में एक प्रोविजन है कि बच्चे अपने परिवारों के पास ही सबसे ज्यादा बेहतर रहते हैं और सबसे ज्यादा इफेक्टिव केयर और प्रोटेक्शन फैमिली ही प्रोवाइड करती है। फैमिली को अगर आप स्ट्रेंथन करेंगे, फैमिली को अगर आप मजबूत करेंगे, तो बच्चों का केयर और प्रोटेक्शन जितना बेहतर तरीके से हो सकता है उतना कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता। तो अभी जिन हालातों में देश की बहुत बड़ी आबादी रह रही है उसमें माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो अपने काम छोड़ करके बड़े शहरों से अपने अपने गांवों की ओर वापस गए हैं। उन परिवारों को चिन्हित करना और उनके बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करना, और केवल स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करना ही नहीं, स्पॉन्सरशिप में जो पैसा है वो बढ़ाया जाए। सामान्य परिस्थितियों में जितना पैसा स्पॉन्सरशिप में हर बच्चे के लिए एलोकेटेड था, अब उस पैसे को थोड़ा सा इंक्रीज किए जाने की जरूरत है। तो मेरी राय में ऐसे बच्चों आइडेंटिफिकेशन,
जो विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज, तालुका लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, इनके कोऑर्डिनेशन से बहुत आसानी से हो जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट के कौन से गांव में कितने बच्चे हैं माइग्रेंट वर्कर्स के, बिग डील टू फाइंड आउट। ओनली टेक्स to call the right person and ask for the information. Every mobile these days. He doesn't have a mobile. Neighbor has a mobile, but in the family has a mobile. हेलो सर, आपकी हेलो, आई थिंक नेटवर्क इश्यूज हैं, सो सर it would be a problem to connect sir. जब तक सर कनेक्ट होते हैं, हेलो जी, I'll try to reconnect sir. इसमें हेलो सर, आनंद सर, जी सर, हेलो सर, you're not audible, or hello sir. हाँ, I can hear you. सर आपका ऑडिबल नहीं है, you're not audible to us. आपकी आवाज कट रही है सर बीच बीच में। Or wait for a confirmation whether I'm audible or not. Sir, you're audible now. You're audible now. Okay. 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 जी सर। So, response to your was is drastically upgrade is program which will help a lot of children, including children of migrant workers. To cut the long story short. Okay. Okay. Thank you so much, sir. I think we have talked about the challenges and we have talked about COVID-19 and its impact. I think it's very important to also talk about measures that can be taken. So, Neha ma'am, if I can put this to you, for the protection of child in conflict with law, what are the measures that can be taken to ensure their protection? So, from an institutional point, from a governmental point of view, what would you suggest some of the measures that can be taken? Thank you. तो वानी, इस पर मैं again I will just sum up probably my 2-3 answers into one and give you a capsule on the measures that I feel can be taken. ये measure multiple level पर होंगे, क्योंकि जो JJ Act है वो इंटर एजेंसी कोऑपरेशन पर ही काम कर सकता है। बच्चों के जितनी कैटेगरीज हैं, जैसे मैंने कहा, वो इतना ओवरलैप करती है CNCP अपने आप में, because ultimately we need to understand that they are the vulnerable population group, right, which are of course placed in a differential criteria. तो जब हम इसमें vulnerability की बात करते हैं, इसी के साथ इंटर एजेंसी वर्क रहेगा। तो अब जो चैलेंज है, क्या कर सकते हैं और कितने लेवल पे कर सकते हैं, वन ऑन इंस्टीट्यूशनल लेवल, सेकंड ऑन गवर्नमेंट लेवल, एंड थर्ड फ्रॉम सिटीजन और द एनवायरमेंटल और द पीयर ग्रुप लेवल। तो पहला आ जाता है गवर्नमेंटल लेवल पर। हम, मेरे जो सजेशन रहेंगे वो ये हैं कि स्पेशली फॉर CCL, जैसा कि मैंने बोला, उनको ऑब्जेक्टिव है, उनको रिहैबिलिटेट करिए, उनको उनकी सोसाइटी में रिस्टोर बैक करिए। तो उसको करने के लिए क्या जरूरी है? आई थिंक हमारा एक्ट काफी पुराना है, 1986 में सेंट्रल एक्ट बन गया था, और उसके बाद 2000 में JJ Act 2000 was there, and then 2015 is there. I think it's been enough number of years and it is time that we start giving specific trainings. So अभी भी JJ में बड़ी जनरल ट्रेनिंग होती है, JJ एक्ट के बारे में बताया जाता है, देखा जाता है। जो सुपरिटेंडेंट्स ऑफ होम्स रहते हैं, उनका मेन एम होता है कि हाँ ठीक है, चेक
ये है, मेडिकल फैसिलिटी है, ये है, कौन सी और किस तरीके की है, उस पे ज्यादा अंतर जाया नहीं जाता। कहाँ मतलब अगर उसमें टाई अप है, और हो सकता है अभी बिल्कुल एकदम फ्रेश पढ़कर एक व्यक्ति निकल कर आए हैं जो मेडिकल जी फैसिलिटी दे रहे हैं इतने कॉम्प्लेक्स केस ऑफ बच्चों को, तो वो वहां पे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग या क्वालिफिकेशन बढ़ाई जा सकती है। तो टाइम है वेर इन वी आर गिविंग trainings which are R&R specific. R&R means rehabilitation and reintegration specific. तो गवर्नमेंट के लेवल पर जो फंडिंग एलोकेशन है वो इन हेड्स पे कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट हेड्स नहीं करेंगे, उस पे स्पेसिफिक पैसा खर्च नहीं होगा, वो वाले प्रोग्राम्स नहीं होंगे और स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं होगी। ऐसे ही डिपार्टमेंट वर्क करता है। आई थिंक रोजी मैम विल बी एबल टू थ्रो मोर लाइट ऑन दैट वन। तो गवर्नमेंट के लेवल पे ये हो सकता है ऑफ कोर्स, जिससे कि जो स्टेक होल्डर है वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स में ट्रेन हो जाए। पॉलिसी होल्डर्स का ये रोल हो सकता है कि प्रोबेबली एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी बनाए कि किस प्रोग्राम के तहत हम किस तरह उनको, प्रोबेबली वी कैन क्रिएट अ चेन। एक मेजर जो मुझे समझ में आता है, probably if we can have a one stop window for placement, giving them a placement, if we tie up with an agency जो उनका रिकॉर्ड, वैसे तो सीसीएल का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, पर जो देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आधे से ज्यादा लोग इनको बाद में काम नहीं देते। अरे ये तो चोर है, ये तो ड्रग एडिक्ट है, ये तो चुरा के भाग जाएगा, इसको मैं नौकरी क्यों दूंगा, ये तो जेल गया था। वो जेल नहीं है, बट those kind of negative connotation। तो ये जो स्टिग्मा है, अब अगर एक ऐसी नोडल एजेंसी हो जो शायद इनको हेल्प करे, हर बच्चे को, जो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करे कि हाँ मैं आपको अपनी गारंटी पे इधर 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 इनको आप लगवा दें, तो जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, और जितने टाइम वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में है उनकी आप कैपेसिटी बिल्डिंग करिए। कैपेसिटी बिल्डिंग ऐसी ना हो कि बस आप ठीक है योगा कर रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन प्रोबेबली विद टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द मार्केटेबिलिटी नीड। क्योंकि ऑब्जर्वेशन होम में कहीं बच्चा 4 महीने से लेके कभी कभी 1 साल तक रहता है, हालांकि लॉ ये नहीं कहता, बट टाइम बीत जाता है। स्पेशल होम में कभी कभी 3 साल। तो 3 years इज अ सब्सटैंशियल टाइम। हाउ आर यू यूटिलाइजिंग दैट टाइम टू डू द कैपेसिटी बिल्डिंग? और लास्टली मैं सिर्फ ये बोलूंगी, सिटीजन का रोल ये रहता है, कम्युनिटी का रोल ये रहता है कि जब वो निकल के आ जाए तो तुम उसको अरे छी इसको अलग करो, ये तो रेप करके आया है, ये तो मर्डर करके आया है, ये तो चोरी करके आया है। वी डोंट नो दैट, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल अ लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी। तो वो जो स्टिग्मा है उसे दूर करने के लिए हाफ वे होम का कॉन्सेप्ट है कि जब तक एक बच्चा रेडी हो और अभी शायद अपने पीयर ग्रुप में दोबारा नहीं जाना चाहता, उसको नौकरी दिला दो, उसे हाफ वे होम में रखो, हाफ होम्स। वहां उसे घर जैसी फीलिंग आए, अपने कई पीयर्स के साथ रहे, जो उससे सीनियर शायद मेंटर डी एडिक्शन में प्रोग्राम्स जी में रहे, एडिक्शन से हट जाए। और उस समय पे पीयर और एनवायरनमेंट, प्रोबेबली जो आंगनवाड़ी स्कूल्स हैं, ऐसे चीजों को हम नोडल एजेंसी बना के उनसे इनपुट्स ले सकते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट जो बच्चा हो रहा है और अगर उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो क्राइम में पड़ जाएगा, तो वो ऐसे जो छोटे छोटे कम्युनिटी लेवल पे हम लोगों को उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये बहुत ही एस्पिरेशनल प्लान है, बट इट विल हैव टू बी डन, otherwise it is very difficult to maintain a chain. So more than budgeting, इट रिक्वायर्स एन इंटरएजेंसी कोऑपरेशन। और दूसरा पीयर के लेवल पे एनवायरमेंटल, जिस जगह से वो ऐसे बच्चों की परसेंटेज ज्यादा निकल रही है, वहां ज्यादा से ज्यादा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम कराए जाए, एक नेगेटिव कनोटेशन हटाने के लिए। बच्चे जो ड्रग में पड़े हुए, वहां पे कुछ चीजें करनी पड़ेंगी उन लोकेलिटीज में जहां से बहुत जी बच्चा निकल कर आ रहा है इस तरह का जो सीसीएल में पड़ता है। तो जी सोसाइटल लेवल पे जो पार्टिसिपेशन जब तक नहीं रहेगा, ये लोग फिर वहीं जाएंगे, उनका मामा चाचा बोलेगा जाओ जेब काटो। So these are जी the things that we are fighting against. It's not easy in a developing economy, but these are the things we can aspire to do. I think this is where I will wrap up my discussion. So I Thank you hope so much, ma'am. sure. जी मैम, मैम some very important points you have made because obviously बच्चे जो हैं, it's not the just responsibility of the family, it's the responsibility of the community. एंड जब तक हम कम्युनिटी वाइज अवेयरनेस नहीं करेंगे, हम अपने आप से स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन हटाएंगे नहीं, तब तक चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ
will always become a CNCP, a child in need of care and protection, or will keep on becoming a child in conflict. So it is when everybody comes together that we can actually work and ensure that they get the protection that they need. Thank you so much, ma'am, for telling us some of the suggestions, and they're very valid suggestions. Sir Anand sir, I would come to you. हमारे जो CNCP के लिए हमारा जो JJ एक्ट है उसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में फॉस्टर केयर का एक सिस्टम बनाया है विच इज वेरी यूनिक. ये यूएस में है फॉस्टर केयर, हमारे यहाँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू फॉस्टर केयर सिस्टम आया है. आपने इंस्टीट्यूशनल बेस्ड केयर के बारे में बताया है हमें एंड उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में. अगर आप थोड़ा सा लाइट थ्रो कर पाए कि फॉस्टर केयर सिस्टम कितना इफेक्टिव है इंडिया में एंड व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर बेटर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन. फॉस्टर केयर के कई मॉडल हैं इंडिया में जी. आप एक फैमिली भी एक बच्चे को फॉस्टर कर सकती है. जी. 2015 के एक्ट में ग्रुप फॉस्टर केयर भी है जहां अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन कैन बी फॉस्टर्ड टुगेदर बाय अ फैमिली. और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फॉस्टर केयर के अलग अलग मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं. जरूरत ये है कि फॉस्टर केयर के इन मॉडल्स को और ज़्यादा लोकलाइज किया जाए ताकि बच्चे अपनी कल्चरल बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा दूर न जाएं. फॉर एग्जांपल, एक नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को नॉर्थ ईस्ट से उठा करके अगर आप उसको पंजाब में रख देंगे तो कितना भी अच्छा आप उसको केयर प्रोवाइड करें, लेकिन वो जो उसका नॉर्थ ईस्टर्न इन्वायरमेंट में पलने और बढ़ने का एक्सपीरियंस है वो पंजाब में कभी नहीं मिलेगा उसको. राइट. वहाँ लोग पंजाबी बोल रहे हैं, बच्चा नॉर्थ ईस्ट का है, खाने की जो हैबिट है वो बच्चा अपना नॉर्थ ईस्टर्न फूड इंजॉय करता है. पंजाब में उसको नॉर्थ ईस्टर्न फूड कहाँ से मिलेगा? बहुत सारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बहुत सारे फाइनर एलिमेंट्स भी हैं. तो ज़रूरत इस बात की है कि फॉस्टर केयर लोकलाइज हो और इस पर एक्सपेंशन प्रोग्राम हो. ग्रुप फॉस्टर केयर 2015 के एक्ट में आया है, लेकिन इसकी जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. इसकी वजह से आप ग्रुप फॉस्टर केयर के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव हो नहीं पाते. तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आपको कि आपने ये फॉस्टर केयर का एक मुद्दा फ्लैग किया है आज के डिस्कशन के लिए. और इस मंच से मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉस्टर केयर को बिल्कुल रोल आउट करना चाहिए और डाइवर्सिटी के साथ फॉस्टर केयर के कई मॉडल, प्री एडॉप्शन फॉस्टर केयर है, ग्रुप फॉस्टर केयर है, इंडिविजुअल फॉस्टर केयर है, कई तरह की फॉस्टर केयर एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड हैं. और जब जैसी ज़रूरत हो उस बच्चे के लिए बस केवल इसका एक्सपेंशन होना चाहिए और जो इसके इर्द गिर्द जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म्स हैं वो स्ट्रेंथन होनी चाहिए. फॉस्टर केयर एक और बहुत अच्छा जरिया है कम्युनिटी इंगेजमेंट का. सोसाइटी कैसे कंट्रीब्यूट करे चाइल्ड केयर में, उसका भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फॉस्टर केयर. और फॉस्टर केयर में कुछ भी ऐसा फॉरेन का नहीं है. फॉस्टर केयर बहुत वेरी मच इंडियन है. तो रोजी मैम कह रही थी ना इंडियन मिल्स, तो फॉस्टर केयर इज वेरी मच इंडियन. द फर्स्ट फॉस्टर चाइल्ड वाज लॉर्ड कृष्णा. जी जी सर. Sir, thank you so much. Sir. I'll ask you the last question. What, according to you, as is the citizen's duty, like एक individual की duty क्या बनती है CNCP के लिए सर? देखिए, सबसे पहली ड्यूटी तो सिटीजन की ये बनती है कि वो लॉ के बारे में थोड़ा बहुत बुनियादी जानकारी रखें. बच्चों से जुड़े लॉ अब बच्चों को खिलौने और चॉकलेट बांटने तक सीमित नहीं है. अगर आप बच्चों से जुड़े लॉ नहीं जानते हैं
तो आप बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए सिटीजन्स को बहुत ज़रूरत है कि बच्चों से जुड़े लॉ उनको पता हों। और रोजी मैम राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग से हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की कानून में जिम्मेदारी है इस लॉ की अवेयरनेस पब्लिक के बीच में जनरेट करना। तो आप देखेंगे इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो बहुत सारे तरह तरह के इन्होंने रीडिंग मटेरियल वगैरह तैयार करवाए हुए हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि सिटीजन्स का लॉ जानना क्यों जरूरी है। कोई खोया हुआ बच्चा किसी को मिल जाता है तो गांव देहातों में, कस्बों में परंपरा क्या है, सिस्टम क्या है, ट्रेडिशन क्या है, वो बच्चे को अपने घर ले जाते हैं। इधर उधर बाजार में ढूंढेंगे थोड़ी देर और उसके बाद नहीं मिले अगर पेरेंट्स तो बच्चे को अपने घर ले गए। अभी जेजे एक्ट में दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। Within 24 hours, anybody who finds a lost child has to report it to the police or Childline or CWC or DCPU or place such child in a child care institution. You cannot take the child home. और जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, वो बहुत गुड इंटेंशन के साथ हो सकता है घर ले जाएं कि हम बच्चे को 2-3 दिन रख लेंगे, खाना खिला देंगे, कपड़े पहना देंगे, तब तक इसके माँ बाप मिल जाएंगे। But they have violated the law. They have delayed the recovery of child. अगर वो लॉ फॉलो करते तो बच्चा शायद 3 दिन से पहले ही रिकवर हो जाता। इस तरह की बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सिटीजन बच्चों के लिए कोई ऑर्फनेज खोल ले तो opening an orphanage and collecting poor children and keeping them in an orphanage is not enough. You have to take registration and taking follow the act. You will not choose who is going to your orphanage. It will child welfare committee which child will go into which orphanage. तो ऑर्फनेज चलाने वाले जो लोग हैं उनको जानना जरूरी है। तो चाइल्ड केयर का जो लॉ है वो बहुत sensitive हो गया है over the years because the loophole and the gap and the welfareistic nature of law has been exploited by vested interests, and that's why the law has acquired such a legal form now. Commission both 10 acts addition to सर आपका कनेक्शन थोड़ा दिक्कत आ रही है आपके कनेक्शन में। Oh, I'm sorry. Am I audible now? जी सर, you're audible. जी सर, you're audible. So I will say that it is important for citizens to know the law, and it's also important for citizens to follow what is prescribed in the law so that children could be better helped. जी sir. Yes, that's it. Okay, thank you so much, sir. Ji sir, since we started with a question to Rosie ma'am, and I think it would be right to end this this question answer and this discussion with a question to Rosie ma'am. Ma'am, what message would you like to give everybody who's joined us today? What would you tell them that we can do as an individual or as a community to protect children and child rights, ma'am? Congratulations, you have taken up such good, good topics today to discuss, and I think Anand and Neha, both of them were wonderful. I had a good listening time. I may not say, as in just in being human to other human, I don't have the right to say anybody to do anything. But like rightly pointed out by Anand, ignorance of law is not an excuse. That is, I think, the one thing Anand was citing right now. And I would also say that we cannot take COVID-19 as an excuse, कि हम नहीं कर पाए बच्चों के लिए. Let us take it as an opportunity to create a better life for them. Maybe not the normal one like we had before Corona times. We can have at least a better one where we could include our children in the inclusive, policy making.
where the budget, like Neha was citing, the budget could be increased. And in the budgeting thing, I would like to say it's not the duty of the ministries alone, it's the duty of the state government too, to increase the budget of their own in the child rights thing. Child budgeting has to be done. जहां बजटिंग अच्छा होगा, रिसोर्स अच्छा होगा, कहीं ना कहीं उसमें काम भी अच्छा होता ही है. And saying that, I would request all the citizens of our country, and perhaps whoever is working in different framework of child rights, that we have to start giving more importance to the vulnerable group of the children that are already into these things. There are a set of people, like we are talking about the migrating population. There are group people who are more into this than the other. The states like Bihar, Jharkhand, UP, a part of Assam, West Bengal, where trafficking or other kind of migration of related to child rights are happening in a more in number, should be given importance perhaps. And then it could be applied to whole of the country. There has to be a there has to be a visibility of the child right violation happening in the COVID era. After COVID, there has to be a visibility. Everybody should work for that, कि वो visible हो कि child right violation हो रहा है country में. नहीं तो हम जैसे पहले भी बोल रहे थे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही कुछ भी नहीं करेंगे. जब visibility आएगा, तब हमको पता चलेगा इसमें problem है, इसमें intervention की जरूरत है, और तभी हम काम कर पाएंगे. On that Thank you, very, Vani. very Thank you, important message, I think ending this discussion is it's beautiful ending it on such an important message. We have a lot of comments that have come in. There are questions as well that have been asked. Since we don't have a lot of time, I would just read out the comments. There's a lot of positive review for the discussion today. Maharshi Shah says, good discussion. These matters need to be spoken more in our daily life, and actions need to be taken fruitfully. Rajesh Sharma is saying, I totally agree with Rosie Tabaji that especially abled children face a lot of bullying in school. I think it would be mandatory in schools to spread awareness about such children. There should be some legal protection against this bullying. There's also Tej Kumar Thapa who's saying very practical, very well said, Rosie ma'am. Dharmendra Kumar sir is saying, great sir. So there's a lot of positive review. I hope whatever we have discussed here today has sparked an interest into child rights. And as our panelists have said, it's very important that everyone should be aware of the law in our country, and they should practice that law. Thank you, Rosie ma'am, Neha ma'am, and Anand sir. It has been an absolute pleasure and an honor to have you with us. The discussion has really enriched me with a lot of knowledge, a lot of understanding of what child right challenges have been and what can be done more. So thank you to all of you. I'd like to say a vote of thanks. Firstly, I'd like to thank Mrs. Jyoti Mujumdar, who's the president of Chetna, and Mrs. Pragya Parande for their ever-ready guidance and support. I would like to thank our speakers who've joined us today. Even after having such busy schedules and taking time out to connect with our viewers. And last but not the least, everybody who's joined us today from your respective houses and who have patiently listened to what our speakers had to say. Thank you so much. Please do share your comments and suggestions on our email ID that has been going on in the ticker. We'll be coming again next Sunday with another webinar on child rights. So till then, stay safe and goodbye. Thank you, everybody.